क्या है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर, नंबर 1, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव्स is to liberate the Indian peasantry from the clutches of money lenders. उनको उनके चंगुल से बचाने के लिए आए cooperatives, and to provide them the farmers, provide them credit at low interest rates. Put out cooperative societies. Land development banks, they provide credit to the farmers against the mortgage of their lands. कह रहे देखो, विदाउट सिक्योरिटी तो हम भी नहीं देने वाले, बट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और हम हेराफेरी नहीं करेंगे. तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, दे प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ लैंड. लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेजिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और रिपेइंग ओल्ड डेट्स. तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं दे रहे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. कमर्शियल बैंक क्रेडिट. Initially, commercial banks played initially मतलब before nationalization. Initially, commercial banks played a marginal role in advancing rural credit. देखा था less than 2%, around 2%. However, after nationalization in 1969, they expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. So, post nationalization, commercial banks के contribution भी improve हुआ. RRBs, regional rural banks, they are opened up in those areas where there are no banking facilities. जहाँ पे banks नहीं है, वहाँ regional rural banks, जहाँ commercial banks नहीं है, वहाँ पे RRBs set up करी जाते हैं. Their main objective is to provide credit and other facilities, especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, and small entrepreneurs in rural areas. तो बचाने के लिए किन से? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स. क्या बचाने के लिए? दे वर चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स, मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स एंड अनफेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स एंड कंडीशंस. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आए. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या क्या आया? कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक्स और सरकार. The government loans provided by the government are known as Takavi loans and are lent during emergency or distress like famines, floods, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया. The rate of interest charged is as low as 6%. Most important development, NABARD, National Bank for Agricultural and Rural Development. जैसे RBI है, एपेक्स बैंक, टॉपोस्ट बैंक कमर्शियल बैंक्स का, वैसे ही नाबार्ड है. नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credits. तो जो सारा institutional sources का सिस्टम है, सब कुछ institutions working for rural credit, उसको कौन गवर्न कर रहा है? नाबार्ड. जैसे कमर्शियल बैंक्स को कौन गवर्न कर रहा है? RBI. All those institutions which are working on rural credit, giving facilities to the rural people, credit facilities, उसको कौन गवर्न कर रहा है? NABARD. Apex Bank, which coordinates and the functioning of not just commercial banks, different financial institutions which are working for expansion of rural credit. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. कब आया? 12 जुलाई 1982. इंपॉर्टेंट है, डेट याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. पर्पस क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इंसानों की नहीं, ये बैंकर्स बैंक है एक तरह से, ये इंस्टीट्यूशंस को फंड कर रहा है. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव्स को, कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को. Besides providing finance to credit institutions, NABARD also provides financial institution to the non-farm sector to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. NABARD. तो institutional sources अभी खत्म नहीं हुए. फिर cooperative credit, land development banks, commercial bank credit, regional rural banks, the government
नाबार्ड और मोदी जी। रुपे क्रेडिट कार्ड इशू करे, नाबार्ड, नाबार्ड फंड्स अप बैंक्स फॉर, यूपी उत्तर प्रदेश नहीं, ये अप है। नाबार्ड फंड्स अप बैंक्स फॉर 2.2 मिलियन रुपए, मतलब अगेन एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एक तो तकावी लोन होता है, कभी कोई इमरजेंसी हो तो करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगेन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, लास्ट है चलो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड। आत्मनिर्भर भारत कह रहे, देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक्स, गवर्नमेंट, और इन सब के ऊपर नाबार्ड, और सबसे ऊपर आप खुद। करेक्ट, संभाल लेना अपने आप। सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर भारत, सारा मतलब ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी। करिए जो ऊपर वाले थे ना सारे, वो इनसफिशिएंट निकले, तो फिर क्या इमर्ज हुआ? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। Moreover, vast proportion of poor rural households could not avail credit facilities because of their inability to provide some kind of collateral. अब इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में यही फर्क होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल नो पेपर वर्क, करेक्ट, कोई टेंशन नहीं, बस इस ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो और लोन तुम्हें मिल जाएगा। तो ये हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल। ब्लैंक पेपर फिर अपने हिसाब से उसमें कुछ भी लिख देंगे। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो पूरा पेपर वर्क करते हैं जेन्युइन। तो हो सकता है वो आपसे सिक्योरिटी मांगे, नहीं है, आपसे आपके इनकम प्रूफ मांगे, नहीं है, तो कह रहे सॉरी लोन भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऐसे ही नहीं आपको लोन दे देंगे, वो अपनी पूरी, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, मतलब वो भी तो पब्लिक मनी यूज कर रहे हैं एक तरह से, अपने कहां से पैसे आ रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग में तो पब्लिक मनी। तो लोन इजीली नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी फंडिंग करती है गवर्नमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी गवर्नमेंट फंडिंग करती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ तुम्हारे भरोसे, सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है, बस तुम्हें मोटिवेट कर रही है कि यार थोड़ा अपना ग्रुप बनाओ, मिलके थोड़े बहुत पैसे कंट्रीब्यूट करो, बाकी हम भी हेल्प करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। SHG, self-help group bank. SHG has emerged as a major microfinance program in the country in the recent years. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to the formal banking system. कि जिनको नहीं मिल पा रहा इंस्टीट्यूशन सोर्सेस से, उसको बचाएगा SHG. So their target groups comprise of small and marginal farmers, agricultural and non-agricultural laborers, artisans, etc. SHGs promote thrift. Thrift क्या होता है? Thrift क्या होता है? Anyone? Thrift is the habit of saving. Thrift is the habit of saving. तो उनको प्रमोट करना, कहते हैं पैसे बचाओ, पैसे बैंक में डालो, पैसे डालो, पैसे डालो। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कैसा होता है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हमने अपना एक ग्रुप बना दिया, हर महीने ना 5-5 हजार रुपए डालेंगे। 5-5 हजार रुपए, 8 5 40,000 अक्यूमुलेट हो गए। अब जिसको जरूरत है वो 40 ले लेगा। सर जरूरत तो मुझे है, किसको जरूरत नहीं होती? सबको ही जरूरत होगी। ऐसे मत करो यार, आज इसके घर में शादी है, आज इसको दे देते हैं, अगले महीने फिर 5-5 हजार रुपए मिलाएंगे, अब इसको नहीं देंगे, अब किसी और को दे देंगे। तो ऐसे चलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसमें बीच में गवर्नमेंट भी पिच इन कर देती है जब जरूरत पड़ती है, और वो लोन दे रही है। वो आपको ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं शादी करो बच्चों की, नहीं, वो लोन ही दे रही है, बट वो ये देख रही है कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, लोग कंट्रीब्यूट। तो हैबिट ऑफ सेविंग्स कह रहे अच्छा चलो 1-1 हजार, अब हमने 1-1 हजार ही करे तो 8 हजार हो गए ना, 8 के तो वो डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखेंगे।
हेल्प ग्रुप्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे. They promote thrift in small proportions by minimum contribution from each member. From the pooled money, जो पैसा इकट्ठा हुआ, credit is given to the needy members. क्योंकि कुछ उसमें से तो अय्याश है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा needy कौन से है. At reasonable interest, which is to be repaid in small installments. मतलब एक होता है कि repay installments, एक होता है कि rotational basis. कह रहे वो आपकी मर्जी है कैसे आपका चल रहा है सिस्टम. By May 2019, nearly 6 crore women in India have become member of 54 lakh women self-help groups. सर हमें भी ज्वाइन करना है. As on 30th June 2022, about 8.39 crore women have been mobilized into more than 76.94 lakh self-help groups. About 10 to 15,000 per rupees per self-help group and another 2.5 lakh rupees per self-help group as a community investment support fund are provided. Renovating fund to take up self-employment for income generation. तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. बाकी वो ये देखते हैं कि आप अपने पैसे डाल रहे कि नहीं डाल रहे. आप नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली. मतलब पर्पस क्या है, आपको आत्मनिर्भर बनाना. तो ये हैबिट ऑफ सेविंग आपका बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करेंगे. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग. तो मॉनिटर करते हैं कौन सा सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से चल रहा है. सच क्रेडिट प्रोविजन आर जनरली रेफर्ड टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. SHGs have also helped in empowerment of women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purposes and negligible portion is borrowed for productive purpose. But गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करती है कि आप उसको, यहाँ पे था ना, लेबरर्स, आर्टिसंस, दे तो सबको ही रहे, बट उसके बाद आप क्या करें उन पैसों का वो तो आपकी मर्जी. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा. क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अनफेवरेबल लोन कंडीशंस. ओके, तो क्या है बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के. उसके जो डिसएडवांटेजेस थी उसको ओवरकम करना ही था इसका ऑब्जेक्टिव, तो वही कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा होगा. not exploitative in nature. The basic aim of institutional credit is to help the farmers in raising their productivity and not to exploit them. Not charging high rates of interest. Rate of interest is low. Moreover, different rates of interest are charged for different types of loans, different categories of farmers. Institutional agencies also draw a clear-cut distinction between short-term credit and long-term credit and provide loans accordingly. Institutional credit is integrated with other agricultural operations and improvements like use of seeds, fertilizers. तो काम के तो पहले दो ही हैं, बाकी जनरल बातें हैं कि वो कैटेगराइज करते हैं, तो क्या हो गया, करो कैटेगराइज. इतना कोई खास बेनिफिट नहीं है वो जितना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नो एक्सप्लॉयटेशन. ज्यादा काम की बात वो है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी.